یسوع مسیح ناصری کے پاک مبارک فتح مند اور بزرگ نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو، آمین۔ آئیے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور آپ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ ہاللویہ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں۔ نئے عہد نامہ کی یہ 4تھی انجیل ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا تیسرا باب، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 اور 6 کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، ابھی جو ہم نے تلاوت کو سنا بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے، آج ہم کچھ دیر کے لیے بپتسمہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اس تلاوت میں سے جو پاک الفاظ ہم نے سنے، یہ پاک الفاظ جیزس کی زبان مبارکہ سے نکلے اور ڈائریکٹ جیزس نے یہ الفاظ نیکودیمس کے ساتھ بولے۔ نیکودیمس ایک ایسا شخص تھا جو یہودی تھا اور شریعت کا پابند تھا، اور شریعت کو اس نے اپنی زندگی میں لیا ہوا تھا اور وہ شریعت کے اوپر عمل کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ میں پوری شریعت کے اوپر عمل کروں۔ اور نیکودیمس ایک ایسا شخص تھا کہ جو آگے دوسروں کو شریعت سکھاتا تھا، یعنی شریعت کے اندر جیسے آج ہماری مسیحیت کے اندر پادری ہوتے ہیں، پاسٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پریچر ہوتے ہیں، اسی طرح نیکودیمس بھی ایک ٹیچر تھا، شریعت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ لیکن جب نیکودیمس نے یسوع کے تعلق سے سنا، یسوع کے تعلق سے اس نے یسوع کے معجزات کو دیکھا، تو جیزس کی تعلیم کی طرف بڑا متاثر ہوتا ہے نیکودیمس۔ چاہے وہ استاد تھا، یہودیوں میں وہ ربی تھا، استاد تھا، تو بھی مسیح کی تعلیم کی طرف وہ توجہ کرتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ کچھ خاص ہے۔ چونکہ وہ استاد تھا، اپنے مذہب میں ٹیچر تھا، دینی ٹیچر تھا، دین کی تعلیم دیتا تھا، اس کا نام نیکودیمس تھا، اور وہ مسیح سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن کچھ اس کے دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر میں مسیح کے پاس جاؤں گا تو یہودی تو مسیح یسوع کے خلاف ہے، لیکن میں نے مسیح یسوع کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو مجھے شریعت میں نہیں ملی۔ میں نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا، مجھے سکون ملا، لیکن میں یسوع سے ملنا چاہتا ہوں۔ چاہے میں استاد ہوں، چاہے میں ٹیچر ہوں، تو بھی میں جیزس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے رات کی تاریکی میں یسوع کو ملنے کا فیصلہ کیا کہ اگر میں صبح سویرے یسوع کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ استاد ہو کر یسوع کے پاس جا رہا ہے سیکھنے کے لیے، یہ کیسا ہمارا ربی ہے۔ تو اس نے رات کا فیصلہ کیا کہ میں رات کو جیزس کے پاس جاؤں گا، جیزس سے ملوں گا، جیزس سے بات کروں گا۔ اور جب جیزس کے پاس نیکودیمس جاتا ہے تو جو باتیں نیکودیمس کرتا ہے وہ جسمانی باتیں ہوتی ہیں، جسم کی باتیں ہوتی ہیں،
लेकिन यीशु मसीह नासरी हमारा मुनज्जी, हमारा मसीहा निकोदिमस के साथ रूह की बात करता है, रूहानी बातें करता है। निकोदिमस कुछ और सवाल करता है, जीसस का कुछ और आंसर देता है। और इस सारे, अगर यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब आप शुरू से पढ़ें तो फिर आपको सारी स्टोरी का पता चलेगा। लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम कम होता है, इसलिए हम शॉर्ट सीखेंगे। इस लेसन का सिर्फ खुलासा हम लेंगे इस चैप्टर का जो अभी हमने तलावत को सुना है। लिखा है, यीशु ने जवाब दिया निकोदिमस को कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये एक कॉन्सेप्ट बादशाहत में दाखिल होने का जीसस ने निकोदिमस को दिया। यीशु बादशाह ने निकोदिमस से कहा कि चाहे तू टीचर है, तू अपने मजहब के अंदर दीनी टीचर है, दीन को फैलाता है, लेकिन तो भी आज मैं तुझे एक नई बात बताऊंगा कि जब तक कोई शख्स बपतिस्मा ना ले, जब तक कोई शख्स पानी का बपतिस्मा ना ले, जब तक कोई शख्स पाक रूह को रिसीव ना अपनी जिंदगी में कर ले, वो बादशाहत के अंदर, बादशाही के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर वो शख्स नहीं जा सकता। हम मसीहों का ये ईमान है कि हमारे लिए मरने के बाद भी जिंदगी खुदा ने रखी हुई है। दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, अपनी मामूल की जिंदगी गुजारता है, उसके बाद मर जाता है और उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि ऐसा नहीं है। एक शख्स था लाजर नाम का, जो बीमार रहता था और वो उसकी बॉडी के ऊपर नासूर बने हुए थे, बड़े बड़े जख्म और फोड़े थे। और वो एक ऐसा शख्स जो शाही काहिनों का लिबास पहनता था और अमीर तरीन शख्स था, उसके पास रहता था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अमीर तरीन शख्स था वो शाही गिज़ा खाता था, खुराक खाता था, अच्छा फूड लेता था, और उसकी मेज से जो टुकड़े बचकर रह जाते थे, लाजर उन टुकड़ों को खाता था। लाजर के पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो अच्छी गिज़ा खाए। मैं भी लाजर ये सोचता हो कि मैं एक रास्ते के अमल के अंदर से गुजर रहा हूँ, मैं गुनाहों से अपने आप को महफूज रखता हूँ, तो कैसे ये मेरी ज़िंदगी है कि मैं परेशानियों में रहता हूँ। और ये शख्स जो ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारता है, इसके पास सारी नेमतें हैं, इसके पास खुराक है, अच्छा खाना है, इसके पास शिफा है, तंदुरुस्ती है, शिफा नहीं तंदुरुस्ती है, ये तंदुरुस्त भी है और अच्छी गिज़ा भी खाता है, अच्छी पोशाक भी पहनता है, अच्छे महल में भी रहता है। तो मैं तो खुदा के साथ चलता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी कैसी है? ना तो मुझे शिफा मिल रही है और ना मुझे अच्छा खाना मिल रहा है। तो लाजर तो भी वो साबित कदम रहा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब दोनों मर गए, लाजर भी और वो अमीर शख्स भी मर गया, तो कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है कि जो अमीर तरीन शख्स था, उसने चूंकि अपनी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजारी, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत के अंदर गुजारी, उसे कभी लाजर के ऊपर तरस ना आया कि मैं इसका इलाज करवा दूं या मैं इसे भी अपने साथ अच्छा खाना दूं। ऐसा नहीं उसके दिल में है, उसके दिल के अंदर दुनियादारी थी। वो जब मर गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो दोज़ख के अंदर, आग के अंदर चला गया। लेकिन लाजर के ताल्लुक से लिखा है कि लाजर जब मर गया तो वो अब्राहम की गोद में गया। हमें वहां से पता चलता है कि ये एक सच्चाई है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। अगर हम ये ईमान नहीं रखते तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस को हम नहीं मानते। अगर हमारा ये ईमान नहीं कि मरने के बाद पता नहीं की होना है, मरने के बाद शायद फिर नई जिंदगी, अब्दी जिंदगी मिलनी है या नहीं मिलनी, अगर ये हमारा ईमान
इस तरह का है तो इसका मतलब है हम बाइबल मुकद्दस के ऊपर ईमान नहीं रखते। बाइबल मुकद्दस ये खुदा का इल्हाम है, खुदा का सांस है, खुदा के पाक मुंह की पाक बातें हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, तो मैंने शायद बताया था कि बाइबल कभी ना बदली थी, ना बदल सकती है। खुदा तो मिट्टी के खिलौनों की, हम जैसे इंसानों की कितनी फिक्र करता है, तो अपने कलाम की खुदा कितनी फिक्र करता है। जो कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत दी है। खुदा कलाम को इज्जत देता है, खुदा कलाम के बराबर किसी को नहीं कर सकता। खुदा ने कलाम को हमेशा इज्जत दी और फिर कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया, इसलिए कलाम कभी चेंज नहीं हो सकता। और कलाम यीशु है, कलाम कभी नहीं बदल सकता। यीशु ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। इसलिए जो कलाम हमारे हाथों में है, मुख्तलिफ जुबानों में इसका तर्जुमा हुआ है। तो शुरूई के अंदर, तर्जुमे के अंदर जो हम देखते हैं, कुछ अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन मफहूम एक ही है, मतलब एक ही है। कलाम जो कुछ हमें सिखाता है, ये हम किसी भी जुबान में पढ़ेंगे, इसका खुलासा यही है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा हमसे प्यार करता है। इसलिए कलाम कभी ना बदला था, ना कलाम बदल सकता है, बल्कि कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो कलाम हमें बदलता है, कलाम हमें चेंज करता है, कलाम तो हमारे हालात बदलता है, कलाम हमें मुकम्मल तौर पर नई जगह पर ले आता है। कलाम खुदा में लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। कलाम नया करता है। जब कलाम पतरस के पास आया तो पतरस से कलाम ने कहा कि मुझे तेरी बॉट चाहिए, मुझे तेरी कश्ती चाहिए पतरस। तो कश्ती जब पतरस ने दे दी तो उसके बाद पतरस की स्टोरी भी कलाम ने बदली। यीशु ने पतरस की जिंदगी को भी चेंज किया। हम अगर चेंज नहीं होते, इसका मतलब है कि हम पतरस की तरह अपनी जिंदगी में यीशु को आने नहीं देते, अपनी कश्ती यीशु को देते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे हालात नहीं बदलते। कलाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलाम में कोई कमी नहीं है, कलाम के अंदर बड़ी कुव्वत और ताकत है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। आप और मैं, हम मसीही उस जिंदगी के लिए भाग दौड़ करते हैं। आप और मैं, हम उस जिंदगी के लिए जो मरने के बाद है, जो अबदी जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होगी, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। आप और मैं, हम उस जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि ईमानदार जो बैठे हुए है, प्लीज मुड़ा है, ईमानदार जो शख्स है, याद रखिएगा इस बात को, ईमानदार शख्स जो है वो समझ जाता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी है, मुख्तसर है, खत्म हो जाएगी। मर्दे खुदा मूसा को कौन कौन जानता है? तकरीबन हम सब जानते हैं। और मर्दे खुदा मूसा अपने ज़बूर में कहते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी है, घास के फूल की तरह है। कईयों ने तो घास का फूल देखे नहीं होगा, क्योंकि वो इतना रहता नहीं है, जैसे धूप निकलती है वो खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी, मर्दे खुदा मूसा कहता है, बुखरात की मानित है। जैसे बादल आते हैं, कभी आपने देखा कोई 2 माह बादल बने रहे? ऐसा नहीं होता। बादल आते जरूर है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाते हैं, उनका कलर्स बदलता रहता है, चेंज होते रहते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी थोड़ी है, मुख्तसर है, ये खत्म हो जाती है। चाहे लाजर की तरह हम परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, हमने कभी बुड़बुड़ाना नहीं है। खुदा हम पर निगाह करता है। मैं पढ़ रहा था बाइबल मुकद्दस में कि सदरक, मिस्र, अब्दनगो को जब आग की भट्टी में डाला, अभी उन्हें डाला नहीं था, अभी उन्होंने आग की भट्टी में जाना था, तो सदरक और मिस्र और अब्दनगो ने बादशाह से कहा, बादशाह हमारा खुदा हमको बचाएगा। लेकिन आगे लिखे है, गौर से कभी पढ़िएगा, अगर वो ना भी बचाए तो भी वो हमारा जिंदा खुदा है। कितनी बड़ी बात है।
मैं उठो मंगना है जिथो राजे भी मंग, ओ देवे या ना देवे ओदी रजा च रहना है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा में खुश रहता है, खुदा उससे प्यार करता है। हमें खुदा ब्लेस करने की कुदरत रखता है, लेकिन खुदा का काम करने का एक अपना तरीका है। उस तरीके को कोई नबी, कोई पैगंबर आज तक नहीं समझ सका। खुदा का काम करने का एक अपना खास तरीका है, क्योंकि खुदा के पास बॉडी नहीं है। जिसके पास बॉडी है उसकी सोचें भी इंसान की अंदर जिस्मानी है। खुदा चूंकि बॉडी नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, इसलिए खुदा के पास रूहानी सोचें हैं, और खुदा हमारे लिए भलाई की सोचें रखता है। इसलिए अजीजों, ये सारी बात इसलिए मैंने आपको बताई कि मरने के बाद यकीनन हमेशा की जिंदगी है, लेकिन उस शख्स को मिलेगी जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है, जिसने पाक रूह को रिसीव किया है। मरने के बाद वो शख्स बादशाहत में शामिल होगा। आज सारे इस बात को अपने दिल में रख लें, मरने के बाद ईमानदार कभी भी नहीं मरते। दुनिया की नजर में वो मर जाते हैं, वो मरते नहीं है। जिन्हें हम कहते हैं रूहां दा प्यार, ये अल्फाज ने रूहों की मोहब्बत, मरने के बाद ईमानदार की जो रूह है वो मसीह के पास चले जाती है। मसीह भी एक पाक रूह है, और ईमानदार का रूह मसीह के पास चले जाता है। फिर वो ईमानदार का जो रूह है वो मसीह की रूह के साथ रहता है। रूह की शक्लो शबी कैसी होगी? कभी आपने गौर किया कैसी रूह दिखती होगी? आपकी रूह कैसे दिखती है जी? आपकी रूह कैसे दिखती है? कभी आपने गौर किया हो कि मेरे अंदर खुदा ने दम फूंका है, वो कैसा होगा? दम मेरे अंदर है भी कि नहीं है? कभी ये ख्याल आपके अंदर आए कि मेरे अंदर दम है भी कि नहीं है? और इस बात का अंदाजा हमें तब होता है जब एक मैयत पड़ी होती है, हाथ पांव सब कुछ वहां पर पड़ा होता है, लेकिन वो हाथ पांव खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो हरकत नहीं करते। वो शख्स अगर तंदुरुस्ती की हालत में उसकी डेथ हुई है और वो पड़ा हुआ है और वो चल फिर नहीं रहा, कुछ घंटे पहले वो चल भी रहा था, बोल भी रहा था, अब ना वो बोलता है, ना वो देखता है, ना वो स्माइल करता है, ना वो रोता है, उसके जज्बात कहाँ पर गए? इसका मतलब है अब उसके अंदर से रूह निकल चुका है। और रूह की वजह से आप और मैं, हम अपने अंदर फीलिंग्स को रखते हैं, जज्बात रखते हैं। बेसिकली ये जज्बात, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये हमारी रूह का हिस्सा है। और ये भी हमें बाइबल सिखाती है कि पाक रूह आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। इसका मतलब है रूह के अंदर भी फीलिंग्स होती है, जज्बात पाए जाते हैं। यीशु मसीह नासरी ने निकोदेमुस से कहा कि अगर तू अब्दी जिंदगी में जाना चाहता है, बादशाहत में शामिल होना चाहता है, तो फिर तुझको पानी से बपतिस्मा लेना होगा। दुनिया की नजर में शायद एक ये छोटी सी रस्म है, लेकिन मैं समझता हूँ ईमानदार के लिए उस पानी में से जिसमें उस वक्त खुदा का रूह मौजूद होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा का रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था, तो उस वक्त उस पानी के अंदर खुदा का रूह मौजूद होता है, जीसस मौजूद होता है। यीशु मसीह नासरी ने भी बपतिस्मा लिया। जब जीसस ने बपतिस्मा लिया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा का रूह जीसस के ऊपर। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इससे पहले खुदा का रूह जीसस के अंदर नहीं था। असल में यूहन्ना को साइन देना था। यूहन्ना को कहा गया था कि जिसके ऊपर खुदा का रूह उतरते तू देखे वो खुदा का बेटा होगा। इसलिए जीसस के ऊपर कबूतर की सूरत में खुदा का रूह नाजिल होता है। और ये बात यीशु ने निकोदेमुस से सिखाई कि तुझे भी, तू चाहे टीचर है, चाहे तू प्रीचर है, चाहे तू मजहबी एक मुअल्लिम है, चाहे तू आलिम है, तो अभी तुझे पानी से बपतिस्मा लेना जरूर है। अगर तू बपतिस्मा नहीं लेगा तो तुझे अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। ये नए साल के आगाज में ये मैसेज रात को खुदा ने मेरे दिल में डाला, और आपकी नजर इस मैसेज को इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आज से हम सब ने, अगर किसी शख्स ने बपतिस्मा नहीं लिया,
آج سے اس نے اپنے دل کی تیاری کرنی ہے. اس 2025 میں ہم ضرور یہ بپتسمے کی جو پاک رسم ہے اس میں شامل ہوں گے. ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، اس شخص نے اور اس سال میں پاک روح میں گہرا ہونا ہے. لیکن اگر کسی نے بپتسمہ نہیں لیا تو ہم اس سال میں کچھ ماہ کے بعد، میں بھی 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، ہم گرمیوں کے موسم میں بپتسمہ ضرور ان بیٹیوں اور بیٹوں کو صلیب کے نیچے لے کر آئیں گے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا. ان کے ہم نام لکھیں گے اور پراپرلی آج سے ان بیٹیوں بیٹوں نے اپنے آپ کو اسپیشلی تیار کرنا ہے. کئی دفعہ ہم جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بپتسمہ لینے کے بعد بھی ہماری روشیں نہیں بدلتی، ہماری زندگی چینج نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے کئی ماہ پہلے آپ کی نظر اس میسج کو کیا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کی یہ ٹیچنگ ہے، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو بادشاہی ابدی زندگی آپ کے لیے ابھی تک نہیں ہے. بپتسمہ لینا بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو تھا، یسوع کے دہنی ہاتھ بائیں ہاتھ لٹکے ہوئے تھے ڈاکو، تو ایک ڈاکو یسوع کو تانا دیتا ہے، ایک ڈاکو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، تو یسوع اسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جیسس نے کہا تھا نا. اور کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں تھا لیا تو ابھی وہ ابدی زندگی میں شامل ہو گیا. اصل میں وہاں پر بپتسمہ لینے کا ٹائم نہیں تھا، تو آپ کو تو ٹائم دیا جا رہا ہے. وہاں پر حوض کوئی نہیں تھا، ورنہ وہاں پر اس کا بپتسمہ بیسیکلی اس شخص کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بپتسمہ ہوا تھا. اس نے جب یسوع پر وہ ایمان لے کر آیا تو اس کا بپتسمہ پانی کے ساتھ نہیں بلکہ یسوع کے لہو کے ساتھ ہو چکا تھا. وہ شخص یسوع کے لہو میں ڈپ ہو چکا تھا. یسوع کے جلال کے لیے تالی بجائے، صرف یسوع کے جلال کے لیے. بیسیکلی وہ شخص وہاں پر ماحول ایسا تھا کہ جو ہی اس نے جیزس پر ایمان وہ شخص لے کر آیا، وہ ڈاکو، تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی یسوع کے لہو میں وہ شخص آ چکا تھا. آج ہمارے لیے پانی موجود ہے، آج ہمارے لیے وقت موجود ہے. اس لیے ضرور آج سے آپ اپنی زندگی پر غور کریں. آپ ایک ڈائری لیں، اس کے اندر آپ لکھیں آپ کی زندگی میں جو پرابلمز چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے اپنی وہ ڈائری کے اندر، آپ نے لکھنا ہے میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں. ایک سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے. پھر دوسرے پیج پر آپ نے لکھنا ہے آپ کی زندگی میں جو بری روشیں ہیں ان کے تعلق سے بھی آپ نے لکھنا ہے. تیسرے پیج پر آپ نے لکھنا آپ کی زندگی میں کون کون سی بیماریاں ہیں وہ بھی آپ نے لکھنی ہے. یہ آپ نے 3 پیج بنانے ہیں. اور جب آپ ان کو پڑھیں گے پھر آپ کے دل میں پاک روح ڈالے گا کہ یہ بری عادت تیرے اندر ہے. پھر اس پر آپ نے کام کرنا ہے. ہر روز اس ڈائری کو آپ نے دعا میں رکھنا ہے. جیزس میں نے اقرار کیا، میں نے لکھا ہے میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، یہ بری عادت میری زندگی سے جاتی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہے، یہ میری جان نہیں چھوڑتا. میں نے اس ڈائری میں لکھا ہے، تو دیکھتا ہے مجھے چینج کر. تو یہ ناپاک عادت مجھے ناپاک کرتی ہے. میں نے اس ڈائری کے اندر لکھا ہے، میں نے کسی کو نہیں دکھایا، میں نے پاسٹر کو بھی نہیں دکھایا. یسوع تو جانتا ہے. تو میری زندگی سے اس بری عادت کو نکال دے. جو ہی آپ دعا کریں گے آپ کی بری عادتیں، بری آپ کی روشیں، آپ کی بری ادائیں، سارا کچھ جاتا رہے گا. اور جو تیسرے پیج پر آپ نے اپنی بیماریوں کے لکھا ہے نا، میڈیسن کے بغیر، میں دعوے سے کہتا ہوں، یسوع کے نام سے دعویٰ کرتا ہوں، میڈیسن لینے کے بغیر آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے ایسا ہو. ہر طرح کی آپ کی ڈیزیز یسوع نام سے جاتی رہی. میں نے یہ سیکھا کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں، بیماریاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے گناہ کے سبب سے ہماری باڈی میں آتی ہیں. یسوع نے کہا میں تجھے شفا ہو چکی ہے،
जा फिर तू गुनाह ना करना। जीसस ने कई मर्तबा ये अल्फाज बोले, अगर तूने शिफा पा ली है तो इस शिफा में तू कायम कैसे रह सकता है? जा फिर गुनाह ना करना। आप जरूर लिखें, फिर जो जो आपकी बुरी आदतें खत्म होती रहे आप उस पर लाइन लगाते जाएं कि ये बुरी आदतें मेरे अंदर से निकलती गई हैं। फिर आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे ये मैसेज खुदा ने दिया कि हमने कलीसिया की तैयारी करवानी है। जल्दबाजी में या जज्बातीपन में बपतिस्मा फायदे का सबब नहीं बनता, क्योंकि पुरानी आदतें तो अभी तक अंदर है, और पुरानी आदतें नो डाउट यीशु एक लम्हा में खत्म करने की कुदरत रखता है, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हमारे बदन के अंदर होती हैं, उन्हें खत्म होने में टाइम की जरूरत होती है। टाइम हम देते नहीं, जज्बाती होकर कहते हैं मैंने बपतिस्मा, भाई साहब आज ही मैंने बपतिस्मा दो। तो भाई साहब देखो तो हाले हौज भी नहीं, अभी तो पानी भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। आपने आज से प्रेयर करनी, जीसस मेरे अंदर पाकीज़गी पैदा कर, और जो आपकी कमियां कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगी जिस दिन बपतिस्मा लेंगे वो कमियां भी जाती रहेंगी यीशु के नाम से। आप जरूर आज से मसीह की टीचिंग को अपनी जिंदगी में लें, इसे दुआ में रखें और कहा करें खुदावन मैंने बपतिस्मा लेना है, क्योंकि मैंने सीखा है अगर एक उस्ताद निकोदेमस जो रब्बी था, आलम था, मुअल्लम था, उसने शरीयत को पढ़ा, यहोवा का वो नाम लेता था, अगर वो बादशाही के अंदर नहीं जा सकता तो बपतिस्मा तो मैंने भी नहीं लिया, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी? इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना है। तो मुझे जीसस तू बपतिस्मा के लिए तैयार कर। जैसे पानी का बपतिस्मा आप लेंगे, पाक रूह का बपतिस्मा आपको इनाम में मिलेगा। होली स्पिरिट अगर पहले भी पाक रूह आपके अंदर काम करता है बहुत अच्छा है, जब आप बपतिस्मा लेंगे पानी का, पाक रूह नए तौर पर आपके अंदर काम करेगा, नए तौर पर पाक रूह आपको यूज करेगा। शायद पाक रूह अभी आपके साथ है, जो ही आप पानी का बपतिस्मा लेंगे पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा, फिर आपके साथ पाक रूह टाइम स्पेंड करेगा। आप और मैं, हम सब इंसान बराबर है, ये कोई बात नहीं कि पादरी थोड़ा अफजल है, कान से उदे भी दो ही नहीं। कभी आपने देखा किसी पास्टर की 3-4 आंखें बनी हो, आइज, कान, सब कुछ, हम सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, बड़ा सिर्फ यीशु है, बड़ा सिर्फ यीशु है, इसलिए पाक भी यीशु है। आप और मैं इंसान होते हुए सब कमजोर है। आज से हमने अपनी कमजोरियों का इकरार करना है। मेरा ईमान है, यीशु ने उसे कहा निकोदेमस से, जो जिस्म से पैदा हुआ है, गौर करेंगे, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ये अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि जो शख्स जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है उसके अंदर जिस्मानी ख्वाहिशें, जिस्मानी सोचें पाई जाती हैं, लेकिन जो शख्स पाक रूह से पैदा हो जाता है, यीशु से पैदा हो जाता है, उसके अंदर यीशु वाली सोचें आ जाती हैं, यीशु वाले जज्बात आ जाते हैं। जीसस के अंदर जो फीलिंग्स पाई जाती है उस शख्स के अंदर वो फीलिंग्स आ जाती है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कहें, हर शख्स कहेगा खुदावन मैं जिस्म से तो पैदा हुआ हूँ, मुझे रूह से भी पैदा होना है, मैं चाहता हूँ मैं रूह से पैदा हो जाऊँ। जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आप भी अपनी आंखें बंद करें, कहें जीसस मैं रूह से पैदा होना चाहती हूँ, मैं रूह से पैदा होना चाहता हूँ। मैंने ये देखा, मैंने ये जाना कि जब तक मैं रूह से नहीं पैदा होऊंगा मैं अब्दी जिंदगी नहीं पा सकता। आज मैंने सीखा पानी का बपतिस्मा अज़हद जरूरी है, और कंप्लीट बपतिस्मा जो बाइबल हमें सिखाती है। हमने प्रॉपर बालों से लेकर पांव के तलवे तक जब हम पानी में डिप होती हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत पानी में दफन हो जाती है और हम रूह में जिंदा निकलते हैं। जैसे कि बेबी पैदा होता है इसी तरह हम मसीह में पैदा हो जाते हैं। आज से हर शख्स ये दुआ करेगा, खुदावंद तू मुझे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सब आइज क्लोज करेंगे और हम दुआ करेंगे। कुछ